Welcome students. In today's lecture, we are starting the part electrolysis. See, this electrolysis, it is in actual, it's a redox reaction. It is a redox reaction. Now, next is the instrument in which this reaction takes place is known as electrolytic cell. Again, electrolysis in actual it's a redox reaction. The instrument in which this reaction takes place, it is known as electrolytic cell. Okay. Now what is meant by this electrolysis? Now see the definition of it. It means in electrolytic cell, molten electrolyte or aqueous solution of electrolyte. Now, first of all, what is meant by molten? So, molten means molten electrolyte means whenever aqueous solution is added into it, when aqueous solution, molten state means it is heated at high temperature and it is converted into liquid form. For example, NaCl. NaCl liquid means NaCl is heated at higher temperature and then it is converted into the liquid form. We know that NaCl is in solid form, it is a sodium chloride, normal salt, table salt, okay, and it is heated at high temperature. So, at that time we are getting NaCl in liquid state. Liquid means it is heated at high temperature and it is converted from solid to liquid. So, this is molten electrolyte and it is taken into electrolytic cell. Or aqueous solution. Aqueous solution means dissolved in water, simple. So, molten electrolyte or aqueous solution of electrolyte is taken, then at high temperature and electrodes are dipped into it. Now, what is meant by an electrode? Electrode means it is a metallic strip or non-metallic rod like graphite. Okay. So, again it is taken and then electrodes are dipped into it. General electrodes क्या होते हैं? Metallic strip like zinc strip, copper strip or platinum strip, steel key strip. Okay. So, electrodes are dipped into it and then sufficient current is passed. So, whenever current is passed means electricity is passed, at that time redox reaction means reduction and oxidation reaction takes place. And whenever this reaction takes place, at that time, whenever these reactions take place, so reduction and oxidation reaction take place. Okay, and redox product is obtained. Redox products are obtained and the result of this redox reaction
is called electrolysis. ओके तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के पार्ट ही कर दिए. इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, molten electrolyte or aqueous solution of electrolyte is taken, and then electrodes are dipped and sufficient current for particular time is passed. Then reduction and oxidation reactions take place and redox products are obtained. तो ये जो रेडॉक्स प्रोडक्ट आपको मिली ना, द रिजल्ट, रेडॉक्स रिएक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि आपको प्रोडक्ट्स मिली. सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. चलो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट मैंने समझा दिया. इलेक्ट्रोलाइट मीन्स द सब्सटेंस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर वी आर गेटिंग द आयंस. इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना कि जिसको भी हम डिसॉल्व करेंगे उसमें से आपको आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. मोल्टन मीन्स हीटेड एट हायर टेम्परेचर एंड इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. Aqueous solution means dissolved in water. Okay, so this phenomenon is known as electrolysis. Now we are taking the examples of it. Chalo, example number 1. Suppose we are taking molten electrolyte. Which one? Molten NaCl. So we know that here NaCl liquid is converted into Na plus and Cl minus, Na plus and Cl minus. Okay, and now due to electrolysis we are getting two components, and due to electrolysis here we are getting sodium as a solid form and chlorine in gaseous form, and the result is known as electrolysis. Means we have done the electrolysis of molten NaCl. Second example, so second example is electrolysis of water. But for the electrolysis of water, remember that suppose we are taking H2O pure form. So in water 2 to 3 drops of acids are added. Which acid? Either H2SO4 or HNO3 or HCl, any one. So that at that time this solution will be electrically some chargeable, because the concentration of ions of H plus and OH minus, we know that both the concentrations are 10 raised to minus 7 molar. 10 raised to minus 7 molar, and it is so much less concentration, so that we have to add some drops of acid, and then water is electrolyzed to give the two components, hydrogen gas and oxygen gas. Then this phenomenon is known as electrolysis. The result of the reaction is known as, we have done the electrolysis of water. Now the name of the scientist is Michael Faraday. He had done several experiments and he derived the two laws. The first law is the amount of redox product obtained at electrodes by electrolysis is directly proportional to the amount of passed electricity. अगेन हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतनी आपको प्रोडक्ट मिलेगी. इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करेंगे प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी. इलेक्ट्रिसिटी कम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो आपको कम प्रोडक्ट मिलेगी. सिंपल. बट
there was one limitation and that limitation was removed by the second law. ओके, फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि माइकल फेराडे ने ऐसा बताया कि आप जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होंगे, ये अमाउंट ऑफ पास इलेक्ट्रिसिटी एंड अमाउंट ऑफ द रेडॉक्स प्रोडक्ट. तो सेकेंड लॉ यहाँ पे क्यों डिराइव करना पड़ा, तो उसका रीजन पहले देख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर टेकिंग 3 different electrolytic cells. Okay, then electrodes are dipped into it, anode and cathode, anode and cathode, here also anode and cathode. These 3 electrolytic cells are having different electrolytes. Suppose here we are taking NaCl liquid. Suppose here we are taking CuSO4 aqueous, and here we are taking Al2O3 plus cryolite. पता है ना, हॉल हेराउट प्रोसेस, एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन है ना, की मेथड है. Then these electrodes आर अटैच्ड इन अ सीरीज. चलो इसको हमने सीरीज में अटैच कर दिया है. सीरीज मतलब इसका कैथोड दूसरे का एनोड, इसका कैथोड दूसरे का एनोड, इसका कैथोड. अब कोई सॉल्यूशन है नहीं तो यहाँ पे मेन, ये है कैथोड, ये है एनोड. ओके, तो इसको हम सीरीज अटैचमेंट बोलेंगे. और यहाँ पे सब सॉल्यूशंस देख लो. लिख फर्स्ट में NaCl लिक्विड, सेकेंड में CuSO4 एक्वियस, थर्ड में Al2O3 प्लस क्रायोलाइट. चलो सबकी कैथोडिक रिएक्शन. अब आपको तो इतना तो याद होगा, कैथोड मीन्स नेगेटिव, एनोड मीन्स पॉजिटिव, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों में साइन डिफरेंट होती है. चलो ये तो पता ही होगा सबको. ओके, तो यहाँ पे कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, तो ये होगी Na प्लस, क्योंकि कैथोड मीन्स नेगेटिव, सो पॉजिटिव आयंस विल बी गॉट attracted and here reduction reaction takes place. and reduction reaction कौन सी होगी, Na plus liquid plus electron gives Na solid. यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, Cu2 plus aqueous plus 2 electrons gives Cu solid. यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि कैथोडिक रिएक्शन लिख रहा हूँ तो फिर पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट होंगे. Al3 plus liquid plus 3 electrons gives Al. चलो यहाँ पे to get 1 mole of metal, different number of electrons are required here. 1 Na solid, अगर 1 mole Na solid चाहिए तो 1 electron is required. 1 mole of Cu solid चाहिए तो 2 electrons means 2 moles of electrons are required. and to get 1 mole of aluminium here 3 moles of electrons are required. मतलब तीनों में number of moles of required are different. ओके, अब देखो यहाँ पे सीरीज अटैचमेंट है. सीरीज अटैचमेंट से क्या होगा पता है, सब में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास. तो देखो चलो, फर्स्ट लॉ क्या था कि अमाउंट ऑफ पास इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द रेडॉक्स प्रोडक्ट. मतलब अगर हमने ज़्यादा करंट पास किया तो ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, कम करंट पास किया तो कम प्रोडक्ट मिलेगी. सेम करंट पास किया तो सेम प्रोडक्ट मिलनी चाहिए यहाँ पे. और सेम करंट पास करने के लिए हमने क्या किया, सबको सीरीज में अटैच कर दिया. ओके, लेकिन यहाँ पे तीनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे देखो Na प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो तीनों में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर गेटिंग 1 मोल आर डिफरेंट. That's why different amount of products will be obtained. तो at that time what is the ratio, तो अब वो हम देखते हैं. तो चलो ऐसा करते हैं, पहले वाली रिएक्शन एज इट इज लिखते हैं. क्यों एज इट इज, अब बाद में आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, चलो 1 इलेक्ट्रॉन करना है तो फिर क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड करेंगे. तो क्या होगा, 1/2 Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 Cu सॉलिड. यहाँ पे क्या होगा, 1/3 Al3 प्लस लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/3 एल्यूमिनियम सॉलिड.
ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने प्रोवाइड ही किया। देखो यहाँ पे सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास बिकॉज ऑल आर अटैच्ड इन अ सीरीज, so that here we have taken the same number of electrons. For that, first equation is written as it is, second equation is divided by 2, third equation is divided by 3. That's why we are getting the same number of electrons. तो देखो फर्स्ट में क्या आया Na सॉलिड, सेकेंड में क्या आया हाफ Cu सॉलिड, थर्ड में क्या आया 1/3 Cu सॉलिड, 1/3 Al सॉलिड। ओके तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में देख लो डिफरेंट थे, अब हमने सेम कर दिए। तो जब सेम किए तो जो पावर, जो चार्ज था ना, उसी नंबर से हमने डिवाइड किया है, जो भी चार्ज था। चलो अब मुझे इतना याद कराओ, चलो सपोज हमने Pt 4+ लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 1 मोल ऑफ Pt। तो इसको, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आफ्टर ऑल क्या आएगा 1/4 आएगा। सो अब सेकेंड लो ध्यान से सुनना, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स containing electrolytic cells are attached in a series and same amount of current is passed, at that time the amount of redox product obtained at the electrodes by electrolysis is directly proportional to the equivalent weight। तो यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, amount of product is directly proportional to equivalent weight। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, इज एटॉमिक मास। अगर जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है वो मेटल है तो फिर एटॉमिक मास, या तो फिर पूरा कोई कंपाउंड है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास हम लेंगे, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। देखो वैलेंसी हम डिवाइड करेंगे, वैलेंसी से ही Cu2+ तो डिवाइडेड बाय 2, Al3+ तो डिवाइडेड बाय 3 किया ना, Pt 4+ तो डिवाइडेड बाय 4 ही आएगा, 1/4 ही आएगा यहाँ पे। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे देख लो। तो एट दैट टाइम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ओके तो इसके, उसका जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके जस्ट मिनट। नाउ स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग the different electrolysis, okay, the electrolysis of different electrolytes, and first we are taking NaCl, and here we are taking total 3 NaCl solution. Number 1, molten NaCl. Molten NaCl means whenever we are taking NaCl in molten state, it gives 2 ions, sodium solid and chlorine gas. Okay, see how it is done in example of the electrolysis at starting. Okay, now see, when NaCl is in liquid state, so at that time we are getting the 2 ions, Na+ liquid and Cl- liquid, right? And here we will take anode and cathode. Generally anode is made up of graphite, that is carbon, and cathode is made up of steel. Anode means positive, so negative ions is getting attracted, it is Cl- liquid to give the chlorine gas, and electron is released. Cathode means negative, so at that time positive ion is getting attracted plus electron to give the sodium solid, simple. Okay, and then by addition of it we are getting the sodium and chlorine gas, simple. Number 2 is concentrated
concentrated means more amount of NaCl is dissolved. NaCl aqueous. अब देखो NaCl is in aqueous medium means dissolved in water but concentrated, more amount is dissolved. So at that time we are getting two ions, Na plus and Cl minus. Okay, and then at anode here simple Cl minus will give Cl2 gas and 2 electrons will be released, but at cathode here anode and cathode both are made up of either platinum or graphite. ओके, सो कैथोड पे जनरली रिएक्शन किसकी होनी चाहिए, Na प्लस की, बट विथ रिस्पेक्ट टू Na प्लस एक्वियस रिडक्शन ऑफ वाटर इज मोर फिजिबल. फिजिबल मतलब यही रिएक्शन वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा. अब वाटर के रिडक्शन रिएक्शन कैसे लर्न करेंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो. H2O contains two ions, H plus and OH minus. We know that 2 H2O means 2 H plus and 2 OH minus. These 2 H plus will gain 2 electrons to give hydrogen gas, and what is remained, 2 OH minus. So finally अब हुआ क्या, ध्यान से देख लो. यहाँ पे into the solution किसकी रिएक्शन होनी चाहिए कैथोड पे, Na प्लस की. कितने, 2 Na प्लस की, लेकिन उसकी रिएक्शन हुई नहीं क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जल्दी होगा इसके हिसाब से. ओके, और 2 Na प्लस की रिएक्शन नहीं हुई, वो एज इट इज है सोल्यूशन में. अब ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वाटर विच आयंस आर ऑब्टेन, दैट इज OH माइनस. हाउ मेनी, 2. सो 2 Na प्लस एंड 2 OH माइनस आर कंबाइंड टू गिव 2 NaOH. मतलब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा. चलो, तो ये NaOH इज अ बेस, सो इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड. ओके, अब 11th के प्रैक्टिकल्स में आता था, याद हो तो, कि वैन एवर फिनोफ्थैलिन इज एडेड, एट दैट टाइम फिनोफ्थैलिन गिव्स पिंक कलर विथ NaOH. तो जैसे ही आपने फिनोफ्थैलिन ऐड किया आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस, तो एट दैट टाइम वी आर गेटिंग OH माइनस. कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कैथोड पे. तो सो नियर अबाउट टू कैथोड वी आर गेटिंग द पिंक कलर. ओके, अगर हमने स्टर कर दिया तो फिर वो रिमूव हो जाएगा. ओके, लेकिन जो NaOH प्रोड्यूस होता है ना, तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ NaOH वी आर गेटिंग द पिंक कलर अराउंड द कैथोड. Okay, so this one is the concentrated NaCl aqueous. Number 3, dilute aqueous solution of NaCl. Okay, now we know that NaCl is dilute. It gives two ions, Na plus aqueous and Cl minus aqueous. Okay, Na plus aqueous and Cl minus aqueous. Now it is dilute solution, so the amount of ions into the solutions is so much less. So with respect to ions, that is Na plus and Cl minus, electrolysis of water is more feasible. It means, suppose we are taking here dilute NaCl, so at that time at cathode, anode and cathode, generally it is taken of platinum. Okay, so
At anode, which reaction takes place? H2O liquid gives, chalo, H2O contains how many hydrogen atoms? 2. One hydrogen atom releases 1 electron. 2 hydrogen atoms will release 2 electrons to give 2H plus and 2 electrons. अब क्या बचा? ऑक्सीजन. So it is formed as a oxygen gas. चलो कैथोड की रिएक्शन, चलो पीछे आगे वाली स्लाइड में हमने लिख दिया है, लेकिन फिर से चलो 2H2O लिखा है, तो 1H2O contains 1H plus 1OH minus. 2H2O contain 2H plus and 2OH minus. 2H plus will gain 2 electrons to give the hydrogen gas, और साथ में आपको मिलेगा 2OH minus. ये आगे हो चुका है ना, यही रिएक्शन है. सो टोटल रिएक्शन इज, देखो 2 plus 1 3H2O gives, चलो 2 electrons कट, बचा क्या? 2H plus 2OH minus H2 gas 1/2 O2 गैस. अब 2H2O 2OH माइनस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? 2H2 और यहाँ पे 3H2O. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? 1H2O यहाँ पे, और एंड इट गिव्स H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस. मीन्स व्हेन वी want to electrolyze the aqueous solution of NaCl, at that time water will be electrolyzed. Means the electrolysis of dilute aqueous solution of NaCl is in actual, it is the electrolysis of the water, because hydrogen gas and oxygen gas are obtained. तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, सेम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? NaCl. यहाँ पे भी देख लो NaCl. तो तीनों में हमने NaCl ही लिया है, लेकिन फर्स्ट में हमने लिया था मोल्टन, और सेकेंड लिया था कंसनट्रेटेड, और थर्ड लिया था हमने डाइल्यूट. बट इन ऑल केसेस वी आर गेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. हियर सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस, यहाँ पे क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इन सोल्यूशन NaOH, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही आपको मिलता है. तो टोटल यहाँ पे आपको ऐसी 3 डिफरेंट हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और डिफरेंट कंसंट्रेशन लिया, तो फिर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलती है. ओके, तो अब सेम रिएक्शन आपको लिखनी है KCl के लिए. मोल्टन, फिर कंसंट्रेटेड, और फिर डाइल्यूट. चलो डाइल्यूट में तो सेम प्रोडक्ट ही मिलेगी क्योंकि अमाउंट बहुत कम है. ओके, अगर आपने मोल्टन KCl लिया तो यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस और यहाँ पे पोटाशियम सॉलिड मिलेगा. कंसंट्रेटेड आपने लिया तो आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, और सोल्यूशन में NaOH, और यहाँ पे NaOH मिलता है. अगर आपने KCl लिया तो आपको KOH मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. Next and most important is CuSO4. Electrolysis of CuSO4. Number 1, by using copper electrodes. ये टोटल 2 चैप्टर्स में आता है, 3rd चैप्टर में और 6th चैप्टर में भी ये आएगा. By using copper electrodes. अब यहाँ पे हम copper electrodes यूज कर रहे हैं और CuSO4 का सोल्यूशन हमने लिया है. ओके, यहाँ पे हमने कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं. एनोड Cu solid and cathode, it is also made up of Cu solid. Okay, and here we are passing the current, means बैटरी हमने की है. देखो ये एनोड कैथोड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया है CuSO4 का. और कॉपर इलेक्ट्रोड्स ही हमने लिए हैं. तो एनोड पे यहाँ पे रिएक्शन होगी कौन सी? देख लो. तो एनोड पे यहाँ पे रिएक्शन होगी Cu सॉलिड गिव्स Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कॉपर एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड है ना, तो ये वाली रिएक्शन होती है. कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu सॉलिड. इलेक्ट्रॉन्स गेन ही होंगे ना,
ओके, टोटल रिएक्शन, तो Cu सॉलिड गिव्स Cu सॉलिड, तो जो कॉपर सॉलिड हमने एनोड पे लिया था वो आपको कैथोड पे मिल रहा है. सो एट दैट टाइम हियर रिमेंबर वी आर टेकिंग द इम्प्योर कॉपर एट एनोड एंड वी आर गेटिंग द प्योर कॉपर एट कैथोड. और ये जो इम्प्योर कॉपर है, इसमें जो इम्प्योरिटीज है उसका जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होगा. सो इट इज सेटल डाउन एट द bottom of the vessel. So this one is known as anodic mud. और anodic mud में गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब मेटल्स यहाँ पे होती है. ओके, ये सब मेटल्स यहाँ पे होती है. ओके, तो इस ये जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है ना, इस मेथड में क्या करेंगे हम, ये प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए ये मेथड यूज होती है. क्योंकि जो इम्प्योर कॉपर हमने लिया था वो प्योर कॉपर एज इन द फॉर्म ऑफ प्योर कॉपर वी आर गेटिंग एट कैथोड. ओके, सो रिमेंबर नंबर 1 एंड नंबर 2 बाय यूजिंग platinum or graphite like inert electrodes. ओके, तो चलो अब ये हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यहां पे लेते हैं, तो क्या होगा ध्यान से देखो. तो प्लैटिनम और ग्रेफाइट ये हम लेते हैं एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए और कैथोड पे, चलो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो तो सबसे इजी, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस विल बी Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड. अब क्योंकि एन यहाँ पे कॉपर जो कैथोड है वो नेगेटिव होगा और एनोड पॉजिटिव होगा, तो कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, कैथोड पे Cu2+ और एनोड पे पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स ये पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव आयन अट्रैक्टेड. बट विथ रिस्पेक्ट टू सल्फेट आयन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज मोर फिजिबल. ओके, देखो कैसे, तो यहाँ पे एनोड पे जनरली यहाँ पे SO4 का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वाटर से, लेकिन यहाँ पे इसका रिडक्शन के लिए और पोटेंशियल चाहिए, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, ड्यू टू रेजिस्टेंस इज नीडेड. दैट्स व्हाई हियर वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज. चलो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन याद करो. H2O लिक्विड अभी हमने लिखी थी. H2O contains 2 hydrogen atoms. 1 hydrogen atom will release 1 electron. 2 hydrogen atoms release 2 electrons to give the 2H plus, then 2 electrons and then half O2. ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या हुआ ध्यान से देखो. सोल्यूशन किसका था, CuSO4 का. तो SO4 2- की रिएक्शन होनी चाहिए, वो नहीं हुई, उसकी जगह किसका हुआ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस. और कौन से पॉजिटिव आयन मिले, 2H+, तो दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2SO4. रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो एसिडिक बना, वहाँ पे बेसिक बना था ना, विल बी एसिडिक. ओके, तो ये हुआ बाय यूजिंग प्लैटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. सिंपल एंड इट्स इजी. ओके, चलो नेक्स्ट. तो स्टूडेंट्स चलो ये इलेक्ट्रोलिसिस की थ्योरी आज कंप्लीट हुई. नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल सम देखेंगे. ओके, तब तक ये थ्योरी प्रॉपरली लर्न करो. तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है. गुड बाय.